Hello everyone, welcome to the CT 360 degrees current affairs session. How are you guys doing? I hope you are doing well. So in this series, we cover current affairs relating to GA and ESI part of your syllabus. We are here particularly targeting NABARD and RBI, but in case you're preparing for any other examination, then also these sessions, they are important for you since we cover it on day-to-day basis. And today we are covering it from 2nd to 3rd of April. We here also cover all the important sources like the PIB, the Hindu and the Business Standard, so that you need not to check what is important for you and what is not. All you have to do is watch these videos and make sure that whenever you have time, you are revising it, because the kind of information we are bringing for you, it's very important that you revise it to retain it. If you are not going to revise it, you are definitely going to forget it. And for that purpose, हम आपके लिए लेके आए हैं the revision MCQ series every Friday 5 PM, where we comprehensively current affairs cover करते हैं monthly basis पर. Make sure that you actually are watching these videos as well. Alright, अब हम देखते हैं that what are the agenda of today. हम कौन से topics करने वाले हैं. The first is the Para Archer of the Year. It comes under defense. Then it is the Prahar LMG. This we will be covering under defense. ठीक है. उसके बाद इट्स द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल, 7th अमेंडमेंट हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे. देन इट इज द नगोया प्रोटोकॉल. इट विल बी कवर्ड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंटल इश्यूज. एंड द लास्ट इज ई सांख्यिकी पोर्टल. सो आई होप यू आर रेडी फॉर द सेशन एंड लेट्स बिगिन. ऑलराइट, सो द फर्स्ट इज द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर. सो शीतल देवी हैज बीन गिवन दिस अवार्ड, द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025. ये अवार्ड दिए जाते हैं बाय द वर्ल्ड अकेडमी. ठीक है, तो कौन देता है? इट इज द वर्ल्ड Academy and she is only 19-year-old. She is from Jammu and Kashmir and she is armless. ठीक है, वो पैरा एथलीट हैं. She is a para archer. उनकी एक आर्म नहीं है and then too she has been awarded this award. ठीक है, तो हमें काफ़ी सीखने की ज़रूरत है इनसे कि despite of her disability, despite of her many problems, she has actually achieved something. ठीक है, alright. So she is the first and the only female armless archer to win the gold at the World Para Archery Championship. ठीक है, she is the first and the only female archer. Then she has also won the women's compound individual gold at the ग्वानहू साउथ कोरिया. ठीक है, इनको ये अवार्ड भी मिला है. एंड अगर हम बात करें, जो मेन न्यूज़ है वो ये है दैट पैरा आर्चर अवार्ड ऑफ द ईयर 2025 इनको मिला है, जो कि देता है वर्ल्ड आर्चरी. आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ. ठीक है, ऑलराइट. सो ये कुछ उनके मेजर मेडल्स हैं जो उनको मिले हैं. हमने बेसिक कर भी लिए हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप में शी हैज़ बीन गिवन गोल्ड ऑल्सो. विमेन टीम्स में सिल्वर आया था इन्होंने, मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज. देन इन पैरा ओलंपिक्स ऑल्सो शी हैज़ वन एन मेडल. देन इन एशिया पैरा गेम्स ऑल्सो, in Asian Archery Championship 2023 also she was awarded. ठीक है, कुछ अवार्ड के बारे में बात करते हैं. सो दीज अवार्ड्स दे वर एक्चुअली स्टार्टेड इन 2011 एंड ये एक्चुअली में आपको करते हैं, इनकरेज करते हैं. एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं ये, बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो स्पोर्ट्स में हैं या जो ऑफिशियल्स हैं या कोचेस हैं, उनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, सो दे वर लॉन्च्ड इन द ईयर 2011 एंड दे रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन आर्चरी. नाउ कुछ और अवार्ड्स अंडर दिस ओनली, तो कौन कौन है? सो आर्चर ऑफ द ईयर हैज बीन गिवन टू अमेरिकन हेनी. ठीक है, देन इट इज द यंग आर्चर ऑफ द ईयर किसको मिला था? बेप्टाइज एडिस. ही वॉज बेप्टाइज एडिस. एंड देन द बेस्ट टीम इज कोरियाज रिकर्व मेंस टीम. तो ये कुछ और अवार्ड्स हैं alongside शीतल देवी, ये भी आपको करने हैं. These can also be asked. So I hope you are clear with first news. ठीक है, moving on. Now it is the Prahar LMG. तो Prahar LMG first batch that is 2000 units of Prahar LMG. बेसिकली एक मशीन गन है, लाइट वेट मशीन गन है. ठीक है, ये इंडियन आर्मी को मिल गई है. फर्स्ट बैच इट हैज बीन रिसीव्ड बाय इंडियन आर्मी. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स कौन है? दे आर दी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस. ये ग्वालियर में इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद पार्टनरशिप इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज. एंड द फर्स्ट बैच दैट इज 2000 लाइट मशीन गन्स दे हैव बीन रिसीव्ड बाय द इंडियन आर्मी. इससे पहले हैवी मशीन्स यूज होती थी. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें प्रहार LMG, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मोड्स भी मिलते हैं. ठीक है, ये लाइट वेट है. इसके जो ऑटोमेटिक मोड्स हैं या इसके जो पूरे राउंड्स हैं
हैं वो ज़्यादा राउंड्स हैं, 120 राउंड्स इसमें एप्लीकेबल हैं, लेकिन जो पहले वाली हमारी मशीन गन्स थी उसमें ओनली 30 राउंड्स कुड बी मेड, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये डिफेंस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमारे डिफेंस सेक्टर में एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, वेयर बाय वी आर एक्चुअली इनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस एज वेल। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को हम इनकरेज कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया दैट इट इज़ इन ग्वालियर। एंड जो अडानी कि ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में अब OEM बन गई है, रादर देन जस्ट कमिंग विद द पार्ट्स, इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये बेसिक जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी बन गई है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इट इज द थर्ड न्यूज, दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसमें 7th टाइम अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। सो इट इज द 7th अमेंडमेंट। अब ये जो कोड है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोड कब आया था। सो दिस कोड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इन्फोर्स्ड इन द ईयर 2016। क्या जरूरत आई थी इस कोड को लेके आने की? सो बेसिकली अर्लियर क्या होता था, बिफोर दिस 2016 क्या होता था कि देयर वर सो मेनी लॉज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। इंडिविजुअल्स के अलग थे, पार्टनरशिप फॉर्म्स के अलग थे, दूसरी कंपनीज के अलग से, एंड दैट इज वाई देयर वाज अ नीड टू कंसोलिडेट देम ऑल, एंड इट वाज एक्चुअली डन इन द ईयर 2016। एंड एक ही कोड बना दिया गया कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क देता है कि इफ देयर इज अ कंपनी जो कि इंसॉल्वेंट हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, तो उसकी हम रेजोल्यूशन प्रोसेस को आगे कैसे लेके जाएंगे, लिक्विडेशन कैसे होगी, ऑल दोज थिंग्स दे आर प्रोवाइडेड अंडर दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। एंड दिस इज द 7th अमेंडमेंट दैट इज मेड इन द ईयर 2026, ठीक है। हम करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, बट उससे पहले बहुत बेसिक तरीके से समझ लेते हैं व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज बैंकरप्सी, ठीक है। सो इंसॉल्वेंसी बेसिकली एक वो स्टेट है व्हेन एक कंपनी के एसेट्स एक्चुअली में कम है एंड लाइबिलिटीज ज्यादा है। सो एसेट्स दे आर अनएबल टू पे फॉर हिज लाइबिलिटीज, देन हम बोलते हैं जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, इट्स हिज स्टेट ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड बैंकरप्सी। बैंकरप्सी बेसिकली लीगल स्टेटस है जो कि आपको कोर्ट देता है आफ्टर द एडजुडिकेशन, व्हेन यू आर एडजज्ड कि यस आप इंसॉल्वेंट है, तो आपका स्टेट क्या हो जाता है, लीगल स्टेटस आपका क्या हो जाता है, यू आर टर्म्ड इनटू बैंकरप्ट। एंड उसके बाद कुछ ऐसी रेजोल्यूशंस हैं जब आपको बेसिकली कैसे करवाते हैं, उसके बाद अगर आपके वो रेजोल्यूशंस पास नहीं होते, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गई एंड उसके जो क्रेडिटर्स हैं दे गो टू द कोर्ट एंड दे से दैट ये जो कंपनी है इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाए एंड इनकी CIRP और CIIRP, ये भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या है प्रोसेसेस, ये स्टार्ट की जाए। एंड अगर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड सक्सेसफुल हो जाती है देन इट्स ओके, बट अदरवाइज जो थर्ड टर्म आती है दैट इज लिक्विडेशन। फिर जो कंपनी होती है वो लिक्विडेट की जाती है, दैट इज उसकी वाइंडिंग अप की जाती है, ऑल द एसेट्स दे आर सोल्ड एंड क्रेडिटर्स को पैसे दिए जाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक बहुत स्टोरी लाइन में समझाऊं हाउ इट हैपेंस इज, बैंकरप्सी हुई, ठीक है, आप एक कोर्ट के पास गए तो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसे लेने होते हैं कंपनी से। जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है, दे कैन आइदर गो फॉर CIRP और दे कैन गो फॉर CIIRP, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस है जिसके अंदर वो जा सकते हैं। अंडर CIRP व्हाट हैपेंस इज कि जो मैनेजमेंट है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है एंड एक रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाया जाता है वेयर बाय व्हाट दे वांट टू डू इज कि जो क्रेडिटर्स है उनके पैसे निकल आए एंड इफ अगर हो सकता है द कंपनी इज ऑल्सो सेव्ड। वेयर बाय द CIIRP जहां लिखा भी हुआ है द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, द इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है CIRP में द मैनेजमेंट और द ओरिजिनल मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो स्टेज, बट उसके साथ ही एक रेजोल्यूशन प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है, रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाता है वेयर बाय दे कैन सी कि क्या हम अब कंपनी को सेव कर सकते हैं एंड क्रेडिटर्स को भी पैसा दे सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो जाती है, इफ ऑल द क्रेडिटर्स, एक कमिटी बनती है क्रेडिटर्स की, अगर वो हाँ कर देते हैं बाय मेजॉरिटी, दे से येस टू दैट रेजोल्यूशन प्लान, देन द कंपनी इज सेव्ड एंड क्रेडिटर्स को पैसे मिल जाते हैं। बट इफ नॉट देन दे अगेन गो टू द कोर्ट एंड लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है whereby company actually में wind up हो जाती है and all the assets of the company they are sold so that the money of the creditors they can get, ठीक है। So अब हम ये देखते हैं कि what are the changes जो इस बार लेके आए जा रहे हैं।
मैंने आपको बता दिया था, ये कोड है 2016 का, इसमें हमने स्टार्ट किया है. इट रिड्यूसेस डिले इन द रेजोल्यूशन, इट मैक्सिमाइज द वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड इट्स अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. कुछ हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं. तो पहले मैंने आपको जैसे अभी बताया कि CIIRP क्या होता है. सो बेसिकली इसमें कुछ न्यू इंट्रोडक्शन की गई है, ठीक है. इट अलाउज आउट ऑफ कोर्ट इनिशिएशन बाय द क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स आउट ऑफ कोर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसेस को. एंड इट रिप्लेसेस द अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस. तो जो अंडर यूटिलाइज्ड फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस है उसको भी ये रिप्लेस करता है, ठीक है. ओके, सो ये मेजर चेंजेस हैं जो हमें करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इज द ग्लोबल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क. तो इट इंट्रोड्यूसेस वॉलेंट्री ग्रुप इंसॉल्वेंसी. ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोवाइड की गई है. सो पहले क्या होता था, इवन इफ एक ही कंपनी के अंडर कुछ कंपनीज हैं एंड दे आर ऑल इंसॉल्वेंट, तो भी इंडिविजुअल प्रोसेसेस होती थी, इंडिविजुअल रेजोल्यूशन प्लान्स बनते थे. बट नाउ इफ देयर इज अ कंपनी, रिलेटेड कंपनीज है, तो ग्रुप बनेगा उन कंपनीज का एंड वो साथ में कर पाएंगे उसकी प्रोसेस, सो दैट इजी हो पाए, ठीक है, फास्टर रेजोल्यूशन हो पाए. देन इट इज द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क. नाउ व्हाट इज दिस? तो इंटरनेशनली हमारे पास कोई भी नहीं था. अगर कोई एसेट्स दे आर अवेलेबल कहीं और, किसी और कंट्री में अवेलेबल है किसी कंपनी के, तो कैसे होगा हमें नहीं पता था, ठीक है. अगर क्रेडिटर्स इंटरनेशनल है तो कैसे होगा नहीं पता था. बट नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. देन इट इज द क्लीन स्टेल प्रिंसिपल. सो वंस अ कंपनी जब वो बैंकरप्ट हो गई, जब लिक्विडेशन हो गई उसकी, ठीक है, तो उसको एक्चुअली में फिर क्लीन स्टेट मिलेगी. पहले क्या होता था दैट एक बार जब ये रेजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हो गई उसके बाद भी देयर यूज्ड टू कम, पीपल यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू से कि हम तो क्रेडिटर हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला, या फिर पता लगता था कि और लिटिगेशन स्टार्ट हो गई है. बट अब बिल्कुल उसको जीरो कर दिया गया है. वंस अ क्लीन स्लेट हैज बीन गिवन, तो क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क फॉर एनीथिंग एल्स. तो वहां बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट उस कंपनी को दी जाएगी एंड नोबडी विल बी एबल टू कम फॉरवर्ड एंड से कि हमारा ये वाला जो क्लेम है वो रह गया, ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस एज वेल. नाउ इट इज द टाइमलाइंस. तो बेसिकली जो NCLT है, आप सबको पता होगा NCLT द ट्राइब्यूनल, ठीक है, वो एडमिट करेगा केसेस विद इन 14 डेज. तो विद इन 14 डेज उसको एडमिट करना पड़ेगा. एंड जो NCLAT है वो डिस्पोज करेगा अपील विद इन 3 मंथ्स, ठीक है. ये मेजर चेंजेस आए गए हैं ताकि हम टाइम इंप्रूव कर सके, हम कम टाइम में विदाउट डिले हम रेजोल्यूशंस लेके आ सके. नाउ जो लिक्विडेशन टाइमलाइन है, मैंने आपको समझाया व्हाट इज लिक्विडेशन. तो लिक्विडेशन का जो इंटायर टाइमलाइन है वो है 180 डेज. द इंटायर प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन हैज टू बी डन इन 180 डेज एंड एक एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज कैन बी गिवन बाय द NCLT बट ओनली विद द सफिशिएंट ग्राउंड्स, ठीक है. देन इट इज द नो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी मैंने आपको बताया क्या होता है. तो अब जो क्रेडिटर हैं, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी, ठीक है, वो एक्चुअली में खुद फॉर्मली अपॉइंट करेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एंड इट स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनका रोल स्ट्रेंथन हो रहा है. कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है, उनको एक अच्छी अथॉरिटी, एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी दी जा रही है for all this process. I hope you are clear with the insolvency and bankruptcy amendment bill. ठीक है, clear? All right. Now let's move on to the next news, that is Nagoya Protocol. So Nagoya Protocol, it's a part of कोड ऑफ सो नगोया प्रोटोकॉल ये आया था 2010 में, ठीक है. कब आया था? इन द ईयर 2010 इन नगोया. नगोया कहाँ पे है? इट इज इन जापान, ठीक है. एंड बेसिकली इट इज अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है एंड इसके अंदर हम ये करने वाले हैं दैट इंडिया इट बिकम्स द ग्लोबल रीडर इन इशूइंग द IRCCs अंडर द नगोया प्रोटोकॉल. तो ये नगोया प्रोटोकॉल मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन आपने सुनी होगी. इट केम इन द ईयर 1992, ठीक है. तो ये इसी का पार्ट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है. इट केम इन 1992 इन ब्राजील एंड 2010 में अडॉप्ट किया गया था नगोया प्रोटोकॉल अंडर दिस, ठीक है. 2010 में जापान में किया गया था एंड इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था इन द ईयर 2011. तो इंडिया ने कब किया था? आई राइट इट, इंडिया ने नगोया प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया था? इन द ईयर 2011. सो बेसिकली होता क्या है इस नगोया प्रोटोकॉल का, मैं आपको एक बहुत इजी वे में अगर समझाऊं. आपने देखा होगा दैट देयर आर सो मेनी कंट्रीज. अगर लेट्स जस्ट से कि देयर इज अ प्लांट, ठीक है, एक इंडिया में प्लांट मिला है एंड वी आर सेइंग कि उसकी एंटी कैंसरस उसका पर्पस है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज हैं.
देयर वाज अ पर्सन, अ रिसर्चर फ्रॉम अमेरिका, ही केम, ही टुक द प्लांट, ही टुक इट, पहले वो ले गए एंड उन्होंने वहां रिसर्च की एंड ही मेड प्रॉफिट्स ऑफ दैट, ठीक है। आफ्टर, पहले यही होता था, बट आफ्टर नगोया प्रोटोकॉल व्हाट वाज सेड कि you cannot do this. Now you have to take the permission of the country, the providing country जहाँ से आपको प्लांट मिला है, यहाँ से आपको एनिमल मिला है, कोई ट्रेडिशनल सीक्रेट मिला है, यू हैव टू टेक देयर परमिशन, ठीक है। एक पूरा अग्रीमेंट बनेगा वेयर बाय यू विल शेयर योर प्रॉफिट्स विद देम एंड तभी समझा जाएगा दैट द डिस्कवरी यू हैव मेड और एनीथिंग दैट यू हैव मेड वो एक्चुअली में लीगल है एंड कंप्लाइंट है। सो नगोया प्रोटोकॉल बेसिकली ये बोलता है कि जो आप शेयर करेंगे, जो आप शेयरिंग कर रहे हैं कोई भी एक रिसोर्स से, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो फेयर शेयरिंग होनी चाहिए। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। अब द मेन जो हमारी न्यूज है कि इंडिया हैज लेड, इंडिया लीडर निकल के आया है व्हेन इट कम्स टू IRCCs, ठीक है। तो IRCCs वो सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप देते हैं एज अ प्रूफ कि यस ये जो भी इन्होंने हमारे कंट्री का रिसोर्स यूज किया है ये लीगली किया है, विद प्रूफ किया है एंड कंप्लाई करके किया है विद द नगोया प्रोटोकॉल। तो इंडिया ने कितने वो सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, इंडिया ने इशू किए हैं 3561। तो 3561 इंडिया ने IRCC सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं आउट ऑफ 6311, दैट मेक्स इट 56%। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडर इन दिस। बाकी जो अगर कंट्रीज की बात करें तो फ्रांस ने कितने इशू किए हैं 964, then Spain is 320, then Argentina is 257, this Pomana is 167 and Kenya is 144. These numbers they are not important for you, I am just explaining it to you that there are many countries जो issue कर रही हैं, but India has emerged as the leader with 56% of IRCC certificates, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं कि IRCC certificates होते क्या हैं। So they are the internationally recognized certificates of compliance. It stands for the internationally recognized certificates of compliance, ठीक है। They are the proof that prior informed consent was obtained from that country, from the providing country, आपने वो consent लिया था। म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स वर एस्टैब्लिश्ड, सो आपने वो कंडीशन जरूर रखी थी, आपने वो म्यूचुअली अग्री की थी दैट हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज एंड हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स। देन इट वाज अपलोडेड ऑन द ABS क्लियरिंग हाउस। सो बेसिकली आप एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेयर बाय बाकी जो लोग हैं, बाकी जो सिटीजन्स हैं, बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन एक्चुअली सी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर अपलोड की गई थी, ऐसी जो यूज़ हुई थी। सो बेसिकली टू केटर टू द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इसको बनाया गया है, ठीक है। तो वो भी अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं दैट मीन्स जो आपका IRCC सर्टिफिकेट है अगर तभी आपको मिलेगा, एंड जो आप चीज़ लेके गए हैं, जो आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप रिसोर्स लेके गए हैं, इट एक्चुअली इज़ अ वैलिड, ठीक है, वो लीगल है। अगर हम इंडिया के फ्रेमवर्क की बात करें तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था द प्रोटोकॉल अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। एंड जो सारी अप्रूवल्स हैं, जो एक्सेसेस हैं, वो सब कौन देखता है, ये बोर्ड्स देखते हैं, ठीक है। एट द सेंटर लेवल इट इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, at the UT and the state level it's the state biodiversity board and the biodiversity management committees at the local level. So I hope you are clear. Significance की अगर बात करें, so it tracks the use of the genetic resources so that we know that कहाँ से वो आ रहा है, who is actually getting the benefit out of it, and उसके साथ जो profit sharing भी हो पा रही है। It ensures fair and equitable benefit sharing, यही मैंने आपको भी बताया है, and it promotes transparency and accountability since you are also uploading it on the platform as well, and thereby actually में सबको पता चल रहा है that you have used some other country's resource and you are providing them with the things that need to be provided under this protocol, तो आप वो कर रहे हैं। so it actually encourages वो transparency and accountability भी लेके आता है। so I hope you are clear with this as well, ठीक है। all right, let's move on, and now it is the last, that is e-Sankhiki portal, ठीक है। so e-Sankhiki portal it is by the Ministry of Statistics and the program implementation। जो national statistics होते हैं उनको उनका एक पोर्टल बनाया गया है सो दैट द सिटीजन्स दे कैन एक्चुअली व्यू इट, उनको ईजी रिसर्च हो सके, ईजीली वो निकाल सके, उनको रीड कर सके, उनको एनालाइज कर सके। सो बेसिकली एक एक्सेस पोर्टल है जिसपे आपको सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो न्यूज़ है वो क्या है, दैट इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेट्स AI। तो AI हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पोर्टल। सो लॉन्च ऑफ AI एनेबल्ड चैटबॉट, ठीक है, ये हो गया है।
and its objective is to improve data discovery and user interaction, so that data discovery for the users it becomes easy and interaction by the chatbot हम वो भी करवा सकें. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं that what is this. Okay, so it is surveys, they are conducted via the computer assisted पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज CAPI. सो नाउ द फील्ड सर्वेज, जो हम सर्वेज किया करेंगे फॉर द स्टैटिस्टिक्स, फॉर द सर्वेज, जो फील्ड सर्वेज होंगे दे विल बी डन विद द यूज ऑफ लैपटॉप्स. ठीक है, मतलब लैपटॉप्स आई मीन टू से डिजिटल डिवाइसेस, तो डिजिटल डिवाइसेस के साथ हुआ करेंगे. एंड देन वेब प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो देयर वेयर बाय सिटीजन्स खुद जाके क्या कर सकते हैं, उस सर्वे को खुद जाके फिल कर सकते हैं, रादर देन समवन कमिंग टू यू. आपको वेब प्लेटफॉर्म दे दिया गया है एंड यू कैन गो एंड फिल इट इन. फीचर्स, इनबिल्ट वैलिडेशन चेक्स, तो आपका जो प्रोसेस है ये बेसिकली रियल टाइम में ही चेक हो रहा है. ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग ऑन दिस सर्वर, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो रियल टाइम में ही चेक हो जाएगी, वेयर बाय एरर्स हो जो हैं वो कम हो जाएंगे. देन रियल टाइम डेटा सबमिशन, अगेन डेटा सबमिशन क्या हो रहा है, रियल टाइम हो रहा है एंड इससे डिलेज बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है, बायलिंगुअल इंटरफेस, सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश देन यू कैन डू इट इन हिंदी एज वेल एंड वाइस वर्सा. सो चैटबॉट सपोर्ट्स इन सर्विस लाइक, तो ये सारे जो सर्वेज हैं इसमें जो चैट बॉक्स है वो भी आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा अगर यू आर फेसिंग एनी ट्रबल. आपने चैट बॉट्स अब तो सब वेबसाइट्स पे हैं, सो बेसिकली इस वेबसाइट के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए भी अब चैट बॉट आ गया है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये मैंने आपको बता दिया पहले क्या होता था, मैनुअल कलेक्शन होता था जिससे देयर वाज डिले. सो अर्लियर इट यूज्ड टू टेक 8 months. कितना होता था, इट यूज्ड टू टेक 8 months फॉर एनुअल रिपोर्ट्स के लिए. अब इट विल ओनली बी डन इन 3 months. ठीक है, अगर हम बात करें मंथली रिपोर्ट्स की, इट विल बी डन इन 15 days, क्वार्टरली रिपोर्ट विद इन 40 days. तो अब काफ़ी जो है हम टाइम बचा पाएंगे एंड हम काफ़ी स्पीड अप कर पाएंगे एंड एट द सेम टाइम एरर्स जो हैं, एरर्स भी हम बहुत ज़्यादा कम कर पाएंगे. ठीक है, नियर रियल टाइम वैलिडेशन एंड प्रोसेसिंग, अगेन द सेम पॉइंट कि प्रोसेसिंग जो है वो साथ के साथ हो रही है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग इट इज टेकिंग प्लेस सेम टाइम, एट द सेम टाइम, तो इससे जो एरर्स हैं वो भी कम हो रहे हैं एंड द डिलेज दे आर एक्चुअली खत्म हो रहे हैं, डिलेज. नाउ दिस इज द एडवांस रिलीज कैलेंडर. सो बेसिकली ये कौन पब्लिश करता है, यही जो मिनिस्ट्री है यही इसको पब्लिश करती है. इट प्रोवाइड्स द शेड्यूल ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स. ठीक है, ये भी डिजिटल हो जाएगी. नाउ द सिग्निफिकेंस, इट एनहांसेस द एक्सेसिबिलिटी, सर्चेबिलिटी एंड द यूजेबिलिटी ऑफ डेटा. सो अब जितना भी डेटा है वो एक्सेसिबल हो गया है आपके लिए. ठीक है, आपको मिलेगा, इजीली मिल जाएगा, यूजर फ्रेंडली हो गया है, यूजर फ्रेंडली ये प्लेटफॉर्म है. ठीक है, सर्चेबिलिटी इसकी बढ़ गई है, सो नाउ यू विल बी एबल टू सर्च इट. ठीक है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द NSS सर्विस. सो NSS सर्विस क्या है, बेसिकली दे आर दी सर्विस, दे आर द लॉन्गेस्ट रनिंग सर्विस जो कि हाउस होल्ड्स का काम करते हैं, हाउस होल्ड्स को एक्चुअली में केटर करते हैं. ठीक है, सो दे इंक्लूड दी सोशो एंड इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो क्या है एक हाउस होल्ड की, उसके लिए सर्विस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ऑल दोज फैक्टर्स दे आर एडेड इन इट. तो ये इंप्रूव करेगा NSS सर्विस को भी एंड इट स्ट्रेंथन्स द डेटा ड्रिवन गवर्नेंस. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्लाइड ऑल्सो. ठीक है, नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस फॉर यू, आई विल बी रीडिंग देम फॉर यू. लेट्स see that how many of you know the right answer. ठीक है, with reference to the insolvency and bankruptcy code, consider the following statements. It provides a time bound process for insolvency resolution of the companies and individuals. The control of the company under the resolution shifts from the management creditors through the committee of creditors and it is administered by the Reserve Bank of India. So what do you think is the right answer to this question? Comment down below right now, what do you think is the right answer? ठीक है, so the right answer is that this statement is not correct. But what is the administering authority under this? It is the Insolvency and Bankruptcy Board of India. It's not the Reserve Bank. लेकिन बाकी दो हैं जो it provides a time bound process for insolvency resolution. Insolvency resolution provide करता है for companies and individuals. This statement is correct. And the control of company under the resolution, it shifts from management to the creditor through the committee of creditors. ये भी बात सही है, ये भी मैंने आपको बताया है. ठीक है, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2. With reference to the Nagoya Protocol, consider the following. It deals with the access to the genetic resources and fair and equitable sharing benefits arising from their utilization.
It is a supplementary agreement to the Convention of Biological Diversity. It mandates that all the genetic resources must be freely accessible to all the countries without prior consent. So very easy question for you. पढ़ते ही आपको ये समझ आना जाना चाहिए that the right answer is first and second statement they are right, but the third statement it is not correct. बल्कि Nagoya Protocol में it is that you have to take permission from the providing country. ठीक है? Now this is a homework question for you. Let me read it for you. Please do participate. Do tell me what do you think is the right answer. ठीक है? The question is, with reference to the e-Sankhiki portal, consider the following statement. It is an initiative of the Ministry of Statistics and Program Implementation to provide access to the official statistical data. It integrates artificial intelligence tools to improve data searchability and user interaction. It is primarily designed for regulating monetary policy in India. Very easy question again. Let me know what do you think is the right answer. And thank you for watching, and if you want the PDF of this session, then it will be available for to you after 24 hours. हमारे जो टेलीग्राम के चैनल पे उस पर मिल जाएगा, एंड द लिंक ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है? सो आई विल सी यू नाउ ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, एंड टिल देन प्लीज डू कॉमेंट द राइट आंसर, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.